عمرو عیار رات کے وقت جب گھر آیا تو اسے پتا چلا کہ بلقیس نے عزیز کو قید کروا دیا ہے۔ عمرو بڑا پریشان ہوا۔ عزیز انتہائی محنتی اور ایماندار غلام تھا اور برسوں سے عمرو کے ہاں رہ رہا تھا۔ اس نے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ عمرو نے بلقیس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ تم نے عزیز کو گرفتار کیوں کروا دیا؟ اس نے میرا ہار چوری کر لیا تھا۔ میں نہیں مانتا، آپ مانے یا نہ مانے، میں نے تو اپنا ہار اس کے جبے کی جیب سے برآمد کیا تھا۔ عمرو اس بات پر اور بھی حیران اور پریشان ہوا۔ اس نے بلقیس سے کہا، میں تمہاری اس بات پر بھی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اس نے تمہارا ہار چوری کیا تھا۔ عزیز ایک ایماندار غلام ہے، اسے بندی خانے میں بھیجنا اچھا نہیں تھا۔ بندی خانے میں بھیجنے سے قبل تمہیں میرا انتظار کر لینا چاہیے تھا۔ مجھے تمہاری یہ جلد بازی اچھی نہیں لگی۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اگر میں اسے بندی خانے کے حوالے نہ کرتی تو وہ فرار ہو جاتا۔ عمرو ضد ہوتے ہوئے بولا، عورت کی عقل تو اس کی چوٹی میں ہوتی ہے۔ مجھے اس بارے میں تجھ سے بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس چوری کے بارے میں تمہیں بتایا کس نے تھا؟ مجھے کس نے بتانا تھا؟ میں نے خود ہی اپنے گھر کے سارے لوگوں کی تلاشی لی، پہلے ان کے کمرے دیکھے اور اس کے بعد ان کی جامع تلاشی لی۔ اسی تلاشی کے دوران ہی عزیز کی جیب سے میرا ہار نکل آیا اور تم نے بلا سوچے سمجھے اسے بندی خانے پہنچا دیا۔ اور میں کیا کرتی؟ اسے سر پر بٹھا کر رکھتی۔ بلقیس، کبھی کبھی تو تمہاری کھوپڑی گھاس چرنے چلی جاتی ہے۔ تم نے اسے بندی خانہ میں پہنچانے سے قبل اتنا بھی نہ سوچا کہ وہ ہمارا سب سے پرانا، وفادار اور ایماندار غلام ہے۔ بلقیس نے عمرو کی بات کا برا تو بہت منایا، پھر بھی اپنے آپ پر قابو کرتے ہوئے بولی، انسان کا دل بے ایمان ہوتے ہوئے دیر تو نہیں لگتی۔ کچھ بھی کہو، میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں کہ عزیز نے تمہارا ہار چرایا تھا۔ ضرور اس میں کوئی راز ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد عمرو نے پوچھا، وہ نئی ملازمہ کہاں ہے؟ اس وقت سو رہی ہے، اسے آپ نے کیا کہنا ہے؟ عمرو نے جواب دیا، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، صبح دیکھ لیں، اس وقت اسے بے آرام کرنا اچھی بات نہیں۔ عمرو نے شہزادی بلقیس کی جانب تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تو بھی عجیب شے ہے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، کھانا تو نہیں چاہتا۔ اگر پل بھر کے لیے اسے بلوا لوگی تو قیامت تو نہیں آ جائے گی؟ بھلا اتنی رات گئی، ملازموں کو بے آرام کرنا کوئی اچھی بات ہے؟ آخر کار عمرو عیار ہار ہی گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ شہزادی اس وقت اس کی کوئی بات نہیں مانے گی، اور اتنی رات گئے اس سے جھگڑا کرنا کوئی اچھی بات بھی نہیں۔ اتنا کچھ اپنے دل میں سوچنے کے بعد وہ اس سے بولا، اچھا شہزادی صاحبہ، آپ کی مرضی۔ آج تو آپ شاہ یمن کی بیٹی نہیں معلوم ہو رہی، بلکہ حداد کی بیٹی ملکہ بلقیس دکھائی دیتی ہو۔ خیر، صبح جب وہ بیدار ہو تو سب سے پہلے اس کی ملاقات مجھ سے کروانا، پھر اسے کسی کام کے لیے بازار بھیجنا۔ اس پر شہزادی بلقیس نے عمرو کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، بہت اچھا سرکار، اب آپ آرام کرنے کی سوچیں، رات کافی گزر چکی ہے۔ عمرو عیار سر کو جنبش دیتا ہوا اپنی مسحری پر جا لیٹا۔ پھر شہزادی کو قارون کے خزانہ والی بات یاد آ گئی۔ وہ عمرو کی مسحری کے نزدیک آ کر بولی، قارون کے خزانہ کے بارے میں فضل بن منظر سے کیا بحث ہوئی؟ عمرو نے سر اونچا کرتے ہوئے جواب دیا، اس نے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ قارون کا خزانہ یمن کے کسی شہر میں غرق ہوا تھا اور وہ اس شہر کو تلاش کر کے رہے گا۔ بھلا وہ شہر کو تلاش کر کے کیا کرے گا؟ بلقیس کی اس بات پر عمرو نے جواب دیا، فضل بن منظر ایک کیمیا گر ہے، وہ اکثر اسی قسم کی باتیں سوچتا اور کرتا رہتا ہے۔ اس کے نزدیک وہ خزانہ آج بھی زمین کے اندر محفوظ ہے۔ اگر اسے خزانے کے دفن ہونے کی جگہ کا پتہ چل جائے تو وہ یقیناً وہاں کی کھدائی کروانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، شہزادی جھٹ سے بولی۔ عمرو ہنستے ہوئے کہنے لگا، میں کوئی شیطان تو نہیں ہوں جو تم نے لاحول پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے آپ کے لیے لاحول کو نہیں پڑھا، فضل کے لیے پڑھا ہے۔ اس کی یہ سوچ اچھی سوچ نہیں ہے۔ جس پر خدا کا عذاب پڑا ہو اس کے بارے میں سوچنا یا اسے حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہنا کوئی اچھی بات نہیں، یہ تو شیطانی سوچ ہے۔ یہ کوئی بدی کی سوچ ہو یا نیکی کی، ہمیں اس بارے میں سر کھپانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فضل جانے اور اس کے کام جانے، تم جا کر آرام کرو اور مجھے بھی آرام کرنے دو۔ اس پر شہزادی مسکراتی ہوئی عمرو کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اجال نے بھی اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد اس نے صنعاء کے ایک ایسے محلے میں رہائش اختیار کر لی جس میں کثرت سے افریقہ کے حبشی اور یمن کے قدیم باشندے آباد تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے آباء و اجداد کسی دور میں یمن پر حکمران تھے اور ان میں بڑے بڑے شہزور بادشاہ بھی ہو گزرے تھے۔ یہ آج بھی اپنے آپ کو بڑے معزز اور اعلیٰ حسب و نسب کے انسان سمجھتے اور کہتے تھے۔ اسلام سے قبل اکثر عربوں سے ان کی مخالفت چلتی رہتی تھی، مگر جب اسلام کی روشنی یمن کے چپا چپا پر پھیلی تو ان لوگوں نے مخالفت چھوڑ کر اسلامی بھائی چارے کو اپنا لیا۔ لیکن اس پر بھی کچھ لوگ ایسے ضرور تھے جو آج بھی
अरबों से दुश्मनी रखना अपना फर्ज समझते थे। गो अज्जाल को आगाज में ऐसे लोगों का पता न चल सका, मगर चंद दिनों के अंदर अंदर ही वैसे लोगों को तलाश करने में कामयाब हो गया। उन लोगों में मसरूक नामी शख्स बहुत ही तेज तर्रार था। वो अक्सर अरबों की बुराइयां करता रहता। अज्जाल जल्द ही उससे मिलने और उसे अपना दोस्त बनाने में कामयाब हो गया। जब अज्जाल को यकीन हो गया कि अब मसरूक उसकी हर बात पर ध्यान देने के अलावा उस पर अमल करने के लिए भी तैयार हो जाएगा, तो एक दिन उसने मसरूक को अपने एतमाद में लेते हुए कहा, मसरूक भाई, मुझे ये बात बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ती है कि आज भी अरबों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो हबशियों को अच्छी नजर से नहीं देखते, उन्हें अजमी कहते हैं और उनसे सख्त नफरत का इजहार करते हैं। मसरूक ने अज्जाल की जानिब गौर से देखा, फिर उसे जवाब देते हुए बोला, बरादर जैद, मैं भी इस बात को खूब अच्छी तरह से जानता और समझता हूँ, मगर मेरे भाई मेरे साथ इत्तफाक नहीं करते। मैंने कई बार उनको एक होने के लिए कहा, मगर हर बार उन्होंने मुझे ठुकरा दिया। वो इस्लाम की एक एक बात पर जान देते हैं, हालांकि इस्लाम से कहीं बढ़कर हमारा कदीमी मजहब ज्यादा बेहतर है। अज्जाल ने हैरान होते हुए पूछा, आपका कदीमी मजहब क्या है? जवाब देने से पहले मसरूक ने अपने दाएं और बाएं देखा, फिर उसने अज्जाल से कहा, तुम नौ मुस्लिम हो, इसलिए तुमसे सच्ची बात कहते हुए मुझे कोई खौफ नहीं आएगा। हमारा कदीमी मजहब मौसूवी है। जब हमारे आबा अजदाद यसरब में फतीवन के फितना को खत्म करने के लिए गए थे, तो उन्होंने वहां दीन मौसूवी ही को इख्तियार किया, और आज भी मैं उसी मजहब को अपना मजहब समझता और कहता हूँ। मसरूक की इन बातों पर अज्जाल का दिल बाग बाग हो गया। उसने दिल में कहा, खुदावंद खुदा की कसम, ये आदमी मेरे साथ मिलकर मुसलमानों के सीने में खंजर घोंप कर रहेगा। लेकिन अज्जाल ने अपनी खुशी का इजहार न होने दिया। उसने मुंह बनाते हुए कहा, मगर अब क्या हो सकता है, अब तो हम मुसलमान ही कहलाते हैं और मुसलमानों ही के दरमियान खाते और पीते रहते हैं। इन बातों से क्या होता है? मसरूक ने जवाब दिया, अगर आज भी मेरे साथ यमन के तमाम हबशी इत्तफाक कर लें तो मैं कम से कम यमन से मुसलमानों की हुक्मरानी खत्म कर सकता हूँ। इस पर अज्जाल ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं किसी और की बात तो करता नहीं, मगर मेरा ताउन हमेशा आपके साथ रहेगा और हमेशा आपके दुश्मनों की चुन चुन कर निशानदेही भी करता रहूंगा। सबसे पहले मैं आपको ऐसे दो अरबों के बारे में बताता हूँ जो आप लोगों के सख्त दुश्मन हैं और हमेशा इस टो में रहते हैं कि आपको किसी न किसी तरीके से जिक पहुंचाया जाए। क्या नाम है उनका? जरा मैं भी तो अपने उन दुश्मनों को जानूं। मसरूक के पूछने पर अज्जाल ने भी जवाब देने से पहले अपने दाएं और बाएं देखा, फिर अपना मुंह मसरूक के कान के नजदीक ले जाते हुए बोला, कुरैशी मोहल्ला के आखिर में रहने वाले दो भाई, जिनमें से एक का नाम अहमद और दूसरे का नाम जुबैर है। इस पर मसरूक ने नफरत से अपनी भवें सुकेड़ते हुए कहा, वो मजदूर भाई, मैं उन दोनों को खूब अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर वो हमारे दुश्मन है तो कोई बात नहीं, मैं जल्द ही उन दोनों को ठिकाने लगा दूंगा। मैं खुलकर अपनी दुश्मनी का आगाज नहीं करूंगा। अज्जाल मसरूक की इस बात पर अपने दिल में बहुत खुश हुआ। उसने कहा, देखिए, ये काम जल्दबाजी का नहीं, आपको बहुत सोच समझकर दोनों पर हाथ डालना होगा। ऐसा ना हो तमाम अरब भड़क उठे और आपके दुश्मन बन जाएं। तुम कोई फिक्र न करो, वो अकीदे के लिहाज से हमसे अलग हैं। उनका जो फिरका है वो हमारा फिरका नहीं। हमारे और उनके अकायद में जमीन व आसमान का फर्क है। मैं उसी फिरका परस्ती की आड़ लेकर अपने साथियों से उनको मरवाने की बात करूंगा। इस पर अज्जाल खुश होते हुए बोला, मेरा ताउन हमेशा आपके साथ रहेगा। इतना कहने के बाद अज्जाल ने बड़े जोश के साथ मसरूक से हाथ मिलाया और फिर अपने घर वापस चला आया। घर पहुंचने के बाद अज्जाल की तबीयत को चैन न आया। वह कुछ देर तक बड़ी बेचैनी के साथ इधर उधर घूमता रहा। इसके बाद वो घर से निकला और सीधा अलियाब के यहाँ जा पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद उसने मसरूक और अपने दरमियान जो जो बातें हुई थी उन सबको सुनाने के बाद मजीद कहने लगा, अब अहमद और जुबैर जिंदा नहीं बच सकते। मसरूक उन दोनों को जान से मरवा कर छोड़ेगा। वो आज भी अपने आप को यमनियों से बेहतर समझता और कहता है। वो बेवकूफ है, उसे तारीख पर कोई अबूर हासिल नहीं। उसने जो बातें की हैं गलत और बेबुनियाद की हैं। अबरहा अल अशरम वो पहला यमनी खानदान है जिसकी बदौलत हबशियों को इक्तदार हासिल हुआ। यमन के जिस बादशाह ने मालिक बिन अजलान की फरियाद पर फतीवन के हवारियों को जान से मारा था उसका नाम तबा अल असगर था, मगर वो भी यसरब पहुंचने के बाद दीन मौसूवी पर कायम हो गया। वो यमन में हमारे आबा में से था। यमन में जुल्नवास बादशाह भी हमारे आबा में से गुजरा है। उसी के दौरे हुकूमत में हबशियों का एक खूंखार गिरोह अबराहा की सरकर्दगी में यमन पर हमलावर हुआ, जिसने बेशुमार लोगों को कत्ल करने के बाद यमन पर अपनी हुकूमत कायम की। असल वाकयात ये हैं जो मैंने तुम्हें सुनाए हैं। वो वाकयात दुरुस्त नहीं हैं जो मसरूक ने तुम्हें सुनाए थे। मसरूक और उसके साथी मुसलमान होने के बावजूद यहूदी अकायद नहीं रखते, बल्कि कुछ और ही अकायद रखते हैं। मैं उन्हें देर से जानता हूँ।
खैर हमारे लिए उसका वजूद बेहतरी साबित होगा। उसने मुसलमान होने के बावजूद इस्लाम में कई बेईमानी अकायद को फरोग दे रखा है। उसके भाई उसी की बात मानते हैं। अगर तुमने मसरूक को अपने काबू में रखा तो वो बहुत जल्द तुम्हारी हर बात पर अमल करने के लिए तैयार हो जाएगा। मसरूक का मुनाफिकपन ही हमारे लिए बहुत ही मुआविन साबित होगा। अज्जाल ने जवाब दिया, मैंने उससे कहा था कि आज से मैं तुम्हारे साथ पूरा ताउन करूंगा। वो इस बात पर बहुत खुश हुआ। उसे यकीन हो चुका है कि मैंने उसके फिरके में शमूलियत कर ली है। अब वह हमेशा मुझ पर एतमाद करेगा। अगर उसकी किसी कमजोरी का आपको इल्म हो तो मुझे आगाह करें, ताकि मैं उसकी कमजोरी को अपने हाथ में रखूं और उससे अपनी मर्जी के काम लेता रहूं। गुर्बत, अलियाब ने कहा, मुसलमानों की सबसे बड़ी कमजोरी गुर्बत है। उसे दौलत की झलक दिखाओ, वो सब कुछ छोड़कर तुम्हारा मतीयो फरमा बरदार बन जाएगा। यही कमजोरी मसरूक की है। उसके पास जज्बात हैं, अरबों के खिलाफ नफरत और तासुब है, मगर उसके पास दौलत नहीं। जब तुम उसे दौलत से बेनियाज करोगे तो फिर वो हर काम कर गुजरने के लिए तैयार हो जाएगा जिसका तुम उसे मशवरा दोगे। लेकिन इसके बावजूद इतनी बात का ख्याल रखना, वो ये कि तुम उससे कभी भी रोब और दबदबे में आकर बात करने की कोशिश न करना। हमेशा तहम्मुल मिजाजी और बुर्दबारी से बात करना। अपनी जुबान को मिठास से भरपूर रखना। उसे दौलत देने के बाद उससे अदब और एहतराम से बात करना। अगर तुमने उस पर रोब दिखाया तो उसके जज्बा बर्तरी को ठेस पहुंचेगी और फिर वो तुम्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए कोशां हो जाएगा। इस पर अज्जाल ने अलियाब की बातों को सराहा और उसके हर मशवरा पर अमल करने का अहद किया। इसके बाद थोड़ी देर तक दोनों के दरमियान और भी बातें हुई। फिर अज्जाल अलियाब के पास से उठकर अपने घर वापस चला आया। उमर गय्यार अपने आप में सख्त परेशान था। वो पहली नजर में ही लैला की हकीकत और असलियत जान चुका था, मगर उसने ये राज ना तो शहजादी बल्कीस पर खोला और ना ही लैला को शुबा होने दिया कि वो उसकी हकीकत को जान चुका है। तीलम अपनी जगह मुतमईन था। एक दिन उमरू रह न सका तो उसने बल्कीस से कहा, मेरे ख्याल में अगर हम लैला को अपने घर से रुखसत कर दें तो अच्छा है। वो क्यों? एक तो तुम्हारी क्यों ने मेरे दिमाग की रगें कमजोर कर दी हैं। हर बात में ये क्यों वो क्यों। तौबा मेरी अल्लाह, कभी तो हाँ में हाँ मिला लिया करो। बल्कीस मुस्कुराते हुए बोली, आप तो बिला वजह अंगारा बन रहे हैं। मेरे क्यों का मतलब यह है कि इतनी ईमानदार और अच्छी मुलाजमा को घर से क्यों निकाल दें। फिर वही क्यों, उमरू जिद होते हुए बोला। बस तुम अपने किसी भी जुमले में क्यों इस्तेमाल न किया करो। अगर तुमने क्यों इस्तेमाल ना किया तो तुम्हारी समझ में मेरी बात आ जाएगी। ठीक है, मैं क्यों से परहेज करती हूँ और आप लैला को घर से निकालने से परहेज करें। इस पर उमरू ने दरवाजे से बाहर झांक कर देखा। जब उसे पता चला कि दरवाजे के आसपास कोई नहीं तो उसने बल्कि से मुखातिब होते हुए कहा, मेरी नेक वक्त ज़ोजाए मोहतरमा, लैला एक जिन्नी है, आदमजाद नहीं। हाय अल्लाह, मैं मर गई। अभी न मरना, मुझे तुम्हारी बड़ी जरूरत है। यह आपने क्या बता दिया? बल्कीस पहले से भी ज्यादा हैरान होते हुए बोली। उमरू ने बल्कीस को समझाते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ। जब लैला मेरे सामने आई थी तो मैंने उसे पहली नजर में ही पहचान लिया कि ये कोई हमारी जिन्स से ताल्लुक रखने वाली शय नहीं। इस पर बल्कीस सोच में पड़ गई। कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली, जब भी उसका हर काम सबसे निराला और अनोखा होता है। घर के काम करने को कहो तो चुटकियों में खत्म, बाजार से सौदा लाने को कहो तो सबसे सस्ता और सबसे अच्छा, चिराग गुल करने का हुक्म दो तो बैठे बिठाए चिराग गुल कर देती थी। आप सच ही कहते हैं, लैला जरूर कोई जिन्नी है और इसी जिन्नी ने अपनी साजिश से अजीज को चोर बनाकर हमारे घर से बंदी खाने पहुंचवाया है। मुझे अजीज ने ही सबसे पहले उसके बारे में बताया था कि ये कोई ऐसी वैसी शय है, आदमजाद नहीं। फिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया? बल्कि इसने परेशान होते हुए कहा, आपने ख्वामखा अजीज बेचारे पर जुल्म करवाया। उमरू यार ने हंसते हुए जवाब दिया, वाह ये भी खूब रही। जब तुम अपने पूरे जलाल में होती हो तो हम जैसों को घास कब डालती हो। मैं तो चीखता चिल्लाते ही रह जाता हूँ और तुम उस वक्त हवा के घोड़े पर सवार किसी की बात ही नहीं सुनती। अब तुम सारी बातें छोड़ो और मेरी बात गौर से सुनो। पहले आप अजीज को बंदी खाने से लेकर आए, उसके बाद मैं आपकी कोई बात सुनूंगी। उमरू ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बोला, बस आ गई जलाल में। अल्लाह की बंदी और मेरी बीवी, मैं भला अजीज को बंदी खाने में रहने देता हूँ? मैं तो उसे पहले रोज ही रिहा करवा लाया था। वो उसी दिन से मेरी दुकान पर मौजूद है। मैंने उसे कहा था कि जब तक शहजादी साहिबा का गुस्सा काफूर नहीं हो जाता तुम दुकान पर ही रहोगे। बस वो उसी दिन से दुकान पर मौजूद है। अच्छा, तो आपने इस बात को भी राजी में रखा? उमरू ने जवाब दिया, इसमें बुरा महसूस करने वाली कोई बात नहीं। मैंने जो कुछ किया सोच समझ कर ही किया। मैं ये बात खूब अच्छी तरह जानता था कि जब कभी तुम्हें असलियत का पता चलेगा तो तुम्हें अपने किए पर अफसोस होगा। बल्कीस बोली, जो कुछ आपने किया अच्छा ही किया। अब आप ये बताएं कि आप मुझसे कौन सी बात करने वाले थे? बात करने से पहले उमरू ने एक बार फिर कमरे से बाहर झांक कर देखा।
जब उसे यकीन हो गया कि कमरे के इर्द गिर्द कोई नहीं है तो वो शहजादी से बोला, मेरी नेक वक्त बीवी, तुम लैला को पहले से भी ज्यादा एतमाद में लो। उसे अपनी मोहब्बत और हमदर्दी का यकीन दिलाओ। उसे यहाँ तक कहो कि वो तुमसे जो मांगेगी वो देगी। खूब कहा तुमने। बल्किस ने उमरू की बात का बुरा मनाते हुए कहा, अगर उसने अपने बेटे के लिए मुझसे मेरा खून मांग लिया तो फिर मैं क्या करूंगी? दे देना। 10-12 सेर खून अगर तुमसे निकल गया तो तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? 10-12 सेर खून? खुदा तुम्हें समझे उमरू, मैं तो चटांग भर खून भी नहीं दे सकती। उमरू संजीदा हो गया। उसने शहजादी को समझाते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं होगी बल्किस, तुम घबराओ नहीं। मैं तुम्हें जो कुछ कहता हूँ तुम वही करोगी। मुझे उम्मीद है लैला तुमसे जरूर कोई अनोखी बात करेगी। बल्किस पहले तो चुप रही, फिर उसने कहा कि वो लैला को एतमाद में लेकर उसे अपने ताउन का यकीन दिलाएगी। खैर हो तुम्हारी, बस इतनी सी बात थी जिसे तुमने कहानी बना दिया। अब मैं जा रहा हूँ। शाम को लैला की हकीकत का पता चल जाना चाहिए इंशाअल्लाह। बल्किस जवाब में इतना कहने के बाद घर के दूसरे कामों की जानिब तवज्जो देने लगी। उमर उसके पास से उठकर घर से बाहर आ गया। आज उसने फिर फजल बिन मंजर के पास जाना था। उमर यार इस बात को जानने के लिए बेचैन था कि कारून का खजाना किस मुल्क में गर्क हुआ था और वो जगह कौन सी है। दूसरी तरफ फजल बिन मंजर उमर यार को अपने एतमाद में लेकर कारून का खजाना हासिल करने की फिक्र में था। हालांकि दोनों इस बात से बेखबर थे कि यहूदियों ने अपनी साजिश के तहत सना के इलाकों में कारून का खजाना खोजने की कोशिश भी शुरू कर दी है। पूरे सना में इस बात का चर्चा था कि नामालूम डाकुओं ने अहमद और जुबैर को सोते में कत्ल करके उनके घर का तमाम असासा लूट लिया है। शाह यमन के सिपाही बड़ी शिद्दत से डाकुओं की खोज में जगह जगह की तलाशियां ले रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि अहमद और जुबैर को सहराई डाकुओं ने कत्ल नहीं किया, बल्कि शहरी डाकुओं के किसी गिरोह ने उन्हें जान से मारा है। दोनों भाइयों के कत्ल से 2 दिन कबल जिल्ला यहूदन अमियाल की तैयार की हुई साजिश के तहत शाह यमन के वजीर अल अश्तर के घर पहुंच चुकी थी। पहले दिन ही उसने चिकनी चोपड़ी बातों और फरेबकारियों से अल अश्तर को अपने काबू में कर लिया। उसने अल अश्तर को यह नहीं बताया था कि वो एक यहूदी औरत है। उसने अपने आप को मुसलमान औरत ही जाहिर किया। चूंकि वो इंतहाई खूबसूरत औरत थी, इसलिए अल अश्तर की यह ख्वाहिश थी कि वो उससे शादी करे। मगर जिल्ला ने उसे यह बताकर कुछ अरसे के लिए खामोश कर दिया कि उसके पहले खामन को मरे चंद दिन ही गुजरे हैं, इसलिए इद्दत की मुद्दत गुजर जाने से कबल वो हरगिज शादी नहीं करेगी। इतना बताने के बाद उसने अल अश्तर से वादा भी कर लिया कि अगर उसने दोबारा शादी की तो वो अल अश्तर के सिवा किसी और से नहीं करेगी। जिल्ला की इस बात से अल अश्तर मुतमईन हो गया। जिल्ला अल अश्तर के यहाँ पहुंचने के बाद तीसरे दिन अलियाब और अज्जाल से भी मिली। उन्होंने उसे अपनी तमाम कारगुजारियों से आगाह किया और साथ ही उसे यह भी बता दिया कि उनके इशारे पर मसरूक ने 2 भाइयों को कत्ल किया है और इसकी इत्तला वजीर और बादशाह तक जरूर पहुंचेगी। इस पर वो हर कीमत पर वजीर को कायल करे कि दोनों भाइयों का कत्ल सहराई डाकुओं के सिवा और कोई नहीं कर सकता। वजीर अल अश्तर फिर खुद ही बादशाह के पास जाकर उसे बताएगा कि दोनों भाइयों का कत्ल सहराई डाकुओं ने किया है, इसलिए शहर में कातिलों को तलाश करने की बजाय सहरा में तलाश करना चाहिए। इससे उनका और मसरूक का भरम खुलने से रह जाएगा। उन्हें शुबा था कि कातिलों की तलाश में कोई उन पर शुबा न कर बैठे। जिल्ला इन तमाम बातों को अपने जहन में रखने के बाद अल अश्तर के यहाँ पहुंची। अहमद और जुबैर के कत्ल के बाद जब सिपाहियों ने बादशाह के हुक्म से कातिलों की तलाश शुरू कर दी तो अहमद और जुबैर के कत्ल के चौथे रोज अल अश्तर जिल्ला से मिलने उसके कमरे में पहुंचा तो जिल्ला ने उसे देखते ही कहा, ये महल में क्या खुसर फुसर होती रहती है? कैसी खुसर फुसर? अल अश्तर ने मुरस्सा कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। जिल्ला ने आगे बढ़कर पहले तो दरवाजा बंद किया, फिर बड़े इत्मीनान से अल अश्तर की मुकाबिल वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोली, किन लोगों का कत्ल हो गया है? मैंने गुलामों से सुना है कि जिनका कत्ल हुआ है वो दोनों गिरोह आपस में सगे भाई थे और बहुत ही नेक और मेहनती थे। तुमने दुरुस्त सुना है, वाकई वो दोनों भाई बहुत अच्छे थे। बादशाह और सिपा सालार का ख्याल है कि उन्हें शहरी डाकुओं ने कत्ल किया है। इसी बिना पर सिपाहियों ने घर घर छापे मारने शुरू कर दिए हैं। वो मशकूक लोगों को गिरफ्तार भी कर रही हैं। बहुत ही बेवकूफ हैं आपके बादशाह और सिपा सालार। जिल्ला की इस बात पर अल अश्तर ने कदरे गुसीली नजरों से उसकी जानिब देखा। जिल्ला भी ताड़ गई कि अल अश्तर को उसकी बात बुरी लगी है, इसलिए फौरन बात बनाते हुए बोली, अल अश्तर, मेरी बात पर गुस्सा मनाने की जरूरत नहीं। साफ और वाज़ेह बात है कि शहरों में डाकुओं के गिरोह नहीं होते, सहराओं में होते हैं। यमन की सरहदें आम खुली हैं। यमन में दाखिल होने के लिए किसी को कोई रुकावट नहीं। और फिर अहमद और जुबैर का मकान भी तो खुली सरहद के नजदीक है। अगर सहराई डाकू ने चलते चलते इन दोनों को लूट लिया होगा तो कौन सी बड़ी बात है। फिर जिल्ला ने अपनी जगह से उठकर अल अश्तर के दोनों कांधों पर हाथ रखते हुए कहा, हुजूर, मैं जो कुछ कह रही हूँ सच कह रही हूँ।
बादशाह सलामत की कार्रवाई से शहरियों में इज़्तिराब फैलेगा, लोग बादशाह के खिलाफ हो जाएंगे और ये कोई अच्छी बात नहीं कि एक मुल्क के अवाम अपने ही बादशाह के खिलाफ उठ खड़े हों। इसलिए आप बादशाह सलामत को जाकर समझाएं कि वो फौरन अपने सिपाहियों को शहरियों के घरों की तलाशी लेने से रोकें और उन्हें हुक्म दें कि वो सहरा में जाकर डाकुओं को तलाश करें। जिल्ला की बातें अलश्तर के जहन में बैठ गईं। उसने जिल्ला की तारीफ करते हुए कहा, मेरे हरम में तुझ जैसी दूर अंदेश और समझदार औरत कोई नहीं है। वाकई तुमने हकीकत से करीब बात की है। मैं अभी जाकर बादशाह सलामत से बात करता हूँ। इतना कहकर अलश्तर जिल्ला के कमरे से निकलकर बादशाह के महल की जानिब चल पड़ा। जब अलश्तर शाही अमन के पास पहुंचा तो उसने सिपा सालार मुआज को शाही अमन के पास बैठे हुए पाया। शाही अमन अलश्तर को देखते ही बोला, आओ अलश्तर, क्या खबर लाए हो? सिपाहियों के कामयाब या नाकाम होने से पहले कैसे कोई खबर मिल सकती है? मैं तो हुजूर के पास एक और ही बात करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। हाँ हाँ जरूर करो, बैठो और तसल्ली से अपनी बात सुनाओ। शाही अमन के हुक्म पर अलश्तर सिपा सालार मुआज के पास पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया। फिर उसने एक मन घड़त बात का सहारा लेते हुए कहा, हुजूर, मैं भेस बदल कर शहरियों के दरमियान घूमा हूँ। मैंने शहरियों को सख्त इज़्तिराब की हालत में पाया है। वो क्यों? शाह यमन ने पूछा। अल अश्तर ने पहले सिपा सालार की जानिब देखा, फिर शाह यमन से मुखातिब होते हुए बोला, हुजूर, लोग ये कह रहे हैं कि शाह यमन शहरियों को ख्वामखा परेशान करने पर तुले हुए हैं। अहमद और जुबैर के कातिल शहरी नहीं, सहराई डाकू हैं। शाह यमन सहराई डाकुओं को गिरफ्तार करने का हुक्म देने की बजाय शहरियों को गिरफ्तार करवा रहे हैं जो बेगुनाह और मजलूम हैं। वजीर अलश्तर की इस बात पर शाह यमन ने परेशान होकर सिपा सालार मुआज की जानिब देखा। मुआज झट से बोला, हजूरे वाला, शहरियों का ख्याल गलत भी तो हो सकता है। भला सहराई डाकू शहरों का रुख कब करते हैं? अलश्तर बोला, हमारी सरहदें खुली पड़ी हैं, उन पर कोई मुहाफिज नहीं। इसके अलावा दोनों मकतूल भाइयों का मकान सरहद के नजदीक है। हो सकता है सहराई डाकू ने नजदीक से गुजरते हुए उन दोनों को मारकर उनका तमाम असासा लूट लिया हो। मुमकिन है। शाह यमन बेचैनी से बोले, बहुत मुमकिन है। शहरियों का इज़्तिराब बेजा नहीं। अलश्तर, तुम हमारी जानिब से हुक्म जारी कर दो कि तमाम सिपाही जो अहमद और जुबैर के कातिलों की तलाश में हैं वापस चले आएं। जब वो वापस आ जाएं तो तुम उनको सहराई डाकुओं का पता चलाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए रवाना कर देना। इस सिलसिले में मुआज का ताउन तुम्हारे साथ होगा। मुआज पहले तो खामोश रहा, फिर उसने एक नई बात करके शाह यमन को फिर से मखमसे में डाल दिया। उसने कहा, हुजूर, शहर में एक ऐसा भी गिरोह आबाद है जो डाकुओं से भी ज्यादा खौफनाक और खतरनाक है, और वो है हबशियों का गिरोह। गो वो मुसलमान हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके अकायद बुत परस्तों जैसे हैं। वो आज भी अपने आप को यमन का असली वारिस समझते और कहते हैं वो अरबों के सख्त दुश्मन हैं। मुमकिन है उनके गिरोह में से किसी एक ने यह हरकत की हो। शायद तलाशी के दौरान सिपाहियों को उनके हाथ से अहमद और जुबैर का माल भी मिल जाए। इस पर अलश्तर ने एक हल्का सा कहकहा मारते हुए कहा, मुआज, तुम कैसी बातें कर रही हो? उस गिरोह को मैं भी जानता हूँ, वो बहुत ही कलील है। इसके अलावा वो इतने गरीब और कल्लाश लोग हैं कि किसी को लूटने और कत्ल करने का तस्वुर तक नहीं कर सकते। वो गिनती में 10-12 घरानों से ज्यादा नहीं है। उनके अलावा जो दूसरे हबशी हैं वो सच्चे और मुत्तकी मुसलमान हैं। वो अकायद में आम मुसलमानों से ताल्लुक रखते हैं, इंतहाई ईमानदार और इबादत गुजार हैं। क्या आपको उन लोगों पर भी कोई शुबा है? अलश्तर के पूछने पर मुआज ने जवाब दिया, जी नहीं, मुझे उन पर कोई शुबा नहीं। मेरा शुबा मुनाफिक मसरूक और उसके साथियों पर है। मसरूक गरीब था लेकिन अब मालदार है। चंद ही दिनों में ना जाने उसके पास इतनी दौलत कहां से आ गई कि उसने अपने फिरका के तमाम लोगों को मुत्तहिद कर लिया है, और वो सभी लोग उसकी खिदमत में हाजिर रहते हैं। अलश्तर ने कहा, यमन के शहरी होने की वजह से उन्हें भी हक है कि वो मेहनत करके कमाई करें, दौलत इकट्ठी करें और फिर आराम से अपनी जिंदगी बसर करें। शाह यमन बोला, क्या ये बात साबित शुदा है कि मसरूक और उसके साथी मुनाफिक हैं? अलश्तर बोला, जी नहीं, वो लोग मुनाफिक नहीं हैं, सिर्फ अकायद में आम मुसलमानों से हट कर हैं। अच्छी या बुरे अकायद की सजा और जजा खुदा के सिवा और कोई नहीं दे सकता। हमें उनके अकायद से क्या ताल्लुक हो सकता है? हाँ, अगर इस्लाम के बुनियादी अकायद से उन्हें इख्तलाफ है या वह उन्हें ना मानते हुए अपने अकायद पर बजिद हैं तो वो सजा के हकदार हैं। शाह यमन की इस बात पर मुआज बोला, हुजूर, मैं जल्द ही आपको उनके बारे में तफसील से बताऊंगा कि वो कैसे अकायद रखते हैं, कैसे नहीं। फिर अलश्तर ने शाह यमन से मुखातिब होते हुए कहा, यह बात तयशुदा है कि सिपाहियों को वापस बुलवाकर सहराई डाकुओं की तलाश में रवाना कर दिया जाए। शाह यमन बोले, हाँ ठीक है, तुम ऐसा कर सकते हो। जिल्ला का जादू जो अलश्तर के सर पर सवार होकर बोल रहा था काम कर गया। आखिर शाह यमन को वही बात मानना पड़ी जो एक मक्कार यहूदी औरत की वसातत से उस तक पहुंची। हाँ, मुझे याद आया लैला,
मेरे शौहर के पास किसी के बाल रखे हुए हैं। वो बाल खुदा जाने उन्होंने किस लिए रखे हैं, ये मैं नहीं जानती। तीलम का जादू काम कर गया। वो बल्कीस के मुंह से यही कुछ कहलवाना चाहता था और उसने बल्कीस को मेहरबान पाते हुए उससे बालों की बात कर ही डाली। फिर वो झट से बोला, हुजूर, मैंने आपसे बिला वजह बात नहीं की थी। वो बाल बड़े मनहूस हैं, किसी वक्त भी आपके मियाँ की जान ले सकती हैं। मगर तुम्हें कैसे पता चला कि वो बाल मनहूस हैं? तीलम ने बात बनाते हुए कहा, एक दिन मैं बाजार में सौदा खरीदने गई तो मेरी मुलाकात एक नजूमी से हो गई। मैंने यूं ही इससे आपके और आपके शौहर के बारे में पूछ लिया। उसने पहले तो आप दोनों की बड़ी तारीफें की, उसके बाद जायचा बनाकर उसने मुझे बालों के बारे में बताते हुए कहा कि वो बाल किसी बला के हैं और बड़े मनहूस हैं। अगर वो उमरू के घर में पड़े रहे तो कोई ना कोई मुसीबत नाजिल हो जाएगी। शहजादी बल्कीस चूंकि लैला के बारे में जान चुकी थी कि वो कोई जिन या जिन्नी है और वो उसे यूं ही बना रही है, फिर भी उसने बड़े भोलेपन से कहा, अल्लाह रहम करे। अगर ये बात है तो मैं आज ही पता करके कि वो बाल कहाँ रखे हैं लाकर तुम्हें दे दूंगी, फिर तुम अपने हाथों से उन्हें दरियाबुर्द कर देना। तीलम अपने आप में बहुत खुश हुआ, फिर भी उसने अपने चेहरे पर मसनूई गम लाते हुए कहा, हुजूर, मैं तो नजूमी की बात सुनते ही सकते में आ गई थी। आप खुदारा जल्द मुझे वो बाल दे दें ताकि मैं उन्हें किसी कुएं या दरिया में फेंक आऊं। तुम कोई फिक्र न करो, भला अपने घर की सलामती से बढ़कर कोई शय प्यारी हो सकती है। मैं कल ही तुम्हें वो बाल दे दूंगी। उसके बाद जो तुम्हारा दिल चाहे उसके साथ सलूक करना, मुझे कोई परवाह नहीं होगी। आप फिक्र न करें, अल्लाह ने चाहा तो मैं आपकी भलाई और बेहतरी के लिए बेहतर ही करूंगी। इसके बाद शहजादी ने उसे घर के दूसरे कामों में लगा दिया और खुद अपने आप में सोचने लगी कि उमरू सच ही कहता था कि ये बला बिला वजह हमारे घर नाजिल नहीं हुई। उमरू आ जाए तो उसे सारी बात से आगाह कर दूंगी। रात के वक्त जब उमरू घर में दाखिल हुआ और खाना वगैरह खाने के बाद आराम करने की गर्ज से अपने कमरे में जा बैठा तो बल्कीस उमरू के पास पहुंचकर आहिस्ता से बोली, वो बाल मांग रही है। बाल? कैसे बाल? किसके बाल? वही बाल जो आपने मेरे सामने एक जिन्नी से अय्यारी के साथ हासिल किए थे। शहजादी के इतना बताने पर उमरू सारी बात समझ गया कि ये जिन किस गर्ज से यहाँ आया है। वो यकीनन बालों की खातिर ही मेरे घर पर नाजिल हुआ है। कुछ सोचने के बाद उमरू ने बल्कीस को जवाब दिया, वो बाल जैसा कि तुम जानती हो एक जिन्नी के हैं। अगर वो बाल हमारे पास रहेंगे, जिन्नी तो लौंडी बनकर हर काम सर अंजाम देगी, लेकिन इन बालों के साथ लैला जैसी बलाएं भी आए दिन घर में साजिशों के जाल फैलाती रहेंगी। अगर बाल लैला को दे दिए तो वो जिन्नी आज़ाद हो जाएगी और लैला जैसी बलाएं भी आनी बंद हो जाएंगी। मैं तो कहती हूँ आप वो बाल उसे दे ही डालें, इसमें हमारी भलाई है। इस पर उमरू हंसते हुए बोला, आखिर लैला तुम्हारे दिल पर काबू पाने में कामयाब हो ही गई। ये बात नहीं है उमरू, मैं नहीं चाहती कि जिन्नों या भूतों की वजह से हमारे घर का सुकून बर्बाद होता रहे। आखिर इस मखलूक से हमारा मुकाबला ही क्या। उमरू फिर से सोच में पड़ गया। बल्कीस ने उसके शाने को हिलाते हुए कहा, क्या सोच रहे हो? मेरी बात का जवाब नहीं दिया। उमरू बोला, बल्कीस तुम ठीक ही कहती हो, मैं कल ही तुम्हें वो बाल दे दूंगा, तुम लैला को दे देना। मुझे उम्मीद है बाल वसूल करने के बाद वो दोबारा हमारे घर का रुख नहीं करेगी। अल्लाह आपको खुश रखे, मैं भी यही चाहती हूँ। इतना कहने के बाद बल्कीस उमरू के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जा पहुंची। दोनों में से किसी एक को भी पता न चल सका कि तीलम दीवार के पास खड़ा उनकी सारी बातें सुन रहा था। जब उसने उमरू की जुबान से यह सुना कि उसने शहजादी को बाल देने का वादा कर लिया है तो वो अपने आप में बहुत खुश हुआ, और जब उसे यह पता चला कि उमरू और बल्कीस को उसकी हकीकत का इल्म भी हो गया है तो वो अपने आप में मोहतात भी हो गया। तीलम अपने कमरे में पहुंचकर सोचने लगा कि उसे सुबह होने से पहले पहले सुहादा को सारी बात से आगाह कर देना चाहिए ताकि जब वो बाल लेकर उसके पास आए तो वो दोनों उसी वक्त अपने सरदार खलियान के पास रवाना हो जाएं। अब ज्यादा देर तक यहाँ रहना अच्छा नहीं। जब रात का पहला पहर गुजर गया तो तीलम चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकला, कुछ सियर पड़ा और इसके साथ ही उमरू के घर से गायब होकर सुहादा के पास जा पहुंचा। सुहादा उसे इतनी रात गए अपने पास देखकर परेशान हो गया। खैर तो है जो इस वक्त चले आए हो, क्या उमरू ने तुम्हें अपने घर से निकलवा दिया है? अजी उस मजदूर की क्या जरूरत जो मुझे घर से निकलवाने का अमल करवाए। मैं तो इस बात की इतला करने आया हूँ कि शहजादी का दिल काबू में करने और बाल हासिल करने में कामयाब हो गया हूँ। तीलम ने जानबूझकर उसे ये न बताया कि उमरू और बल्कीस उसकी हकीकत से आगाह भी हो गई हैं। सुहादा एकदम अपनी जगह से उछलकर खड़ा हो गया। खूब रही, कहाँ हैं वो बाल? अजी सुबह होते ही मिल जाएंगे, आप घबराते क्यों हैं? शहजादी उमरू को कायल करने और उससे बाल हासिल करने का अहद ले चुकी है और उमरू ने भी वादा किया है कि सुबह होने के बाद बाल शहजादी के हवाले कर देगा। मैं तो यही खुशखबरी सुनाने आप तक आया हूँ। वो मारा, सुहादा खुश होते हुए बोला, बड़ा चालाक और अय्यार बनता था। देख तीलम, जो ही कल तुम्हें सरदारनी के बाल मिले तुम उनको लेकर फौरन मेरे पास चले आना, हम उसी वक्त सरदार के पास रवाना हो जाएंगे।
वहां जाकर ये ना कहना कि बालों को तुमने अकेले हासिल किया था, बल्कि मेरा भी नाम साथ लेना और कहना कि हम दोनों ने बाल हासिल किए। इस पर सरदार बहुत खुश होगा और हम दोनों को खूब इनाम देगा। तुम कोई फिक्र न करो, मैं हर मामले में तुम्हें अपने साथ रखूंगा। इतना कहने के बाद तीलम ने चलने का इरादा जाहिर किया और इसके बाद पहले की तरह सिहर पड़ा और सुहादा के हाथ से गायब होकर उमरू के घर जा पहुंचा। दूसरे दिन सुबह होने के कुछ देर बाद उमरू बाजार गया और फिर जल्द ही वापस आ गया। बिल्किस ने उसे अपना वादा याद दिलाते हुए कहा, आपने बाल देने का वादा किया था। हाँ मुझे याद है, मैं अभी निकाले देता हूँ। इतना कहने के बाद उमरू अपने कमरे में गया और थोड़ी देर के बाद बाल लेकर शहजादी बल्किस के पास चला आया। फिर उसने बल्किस से कहा, ये बाल महज मैं तुम्हारी वजह से दे रहा हूँ। अगर कोई और इन बालों को मांगता तो हरगिज वापस न करता। बड़ा एहसान किया है आपने मुझ पर। बिल्किस ने कुछ तंजिया लहजा में बात की तो उमरू ने कहा, बल्किस इस बात को बहुत बड़ा एहसान ही समझो। अगर तुम जरा सा भी इशारा कर दो तो मैं बाल हरगिज वापस ना करूं, लेकिन उसके बाद जो कुछ होगा तुम्हारे साथ होगा, मेरे साथ नहीं। खुदा के लिए ऐसा ना करें और ना ही ऐसा सोचें। आप बाल मेरे हवाले करें, मैं अभी लैला को बुलवा कर ये बाल उसके हवाले करती हूँ। बिल्किस की इस बात पर उमरू ने बालों की लट जो उसने एक कपड़े में लपेट कर संभाली हुई थी उसके हवाले करते हुए बोला, लो शहजादी साहिबा, इसको संभाल लो और मेरे सामने इन्हें लैला को ना देना। बिल्किस ने बाल लेकर संभालिए। फिर उसने उमरू की बात का जवाब देते हुए कहा, आप फिक्र न करें, मैं आपके सामने लैला से कोई बात नहीं करूंगी और ना ही ये बाल उसे दूंगी। उमरू यार मुस्कुराया और इसके बाद कोई बात किए बगैर अपने कमरे में जा लेटा। आज वो आराम करने के सिवा कोई काम नहीं करना चाहता था। थोड़ी देर के बाद बिल्किस ने तीलम को अपने कमरे में बुलवा भेजा। जब वो आ गया तो बिल्किस ने उससे मुखातिब होते हुए कहा, मैंने घर में बाल रखने पर अजाब और मुसीबत से उमरू को आगाह कर दिया था, जिस पर उसने बाल हमारे हवाले कर दिए। अब वही बाल मैं तुम्हें दिए देती हूँ। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। तीलम ने फौरन आगे बढ़कर शहजादी से बाल लिए। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने उमरू जैसे यार पर कामयाबी हासिल की थी। उसने अपने जज्बात पर काबू पाते हुए कहा, शहजादी साहिबा, आपने बड़ा अच्छा किया जो बाल मुझे दे दिए। आपने बाल मुझे देकर अपने घर से मुसीबतों के पहाड़ दूर कर दिए हैं। मैं अभी इन बालों को ले जाकर दरिया में बहा देती हूँ। हाँ हाँ अभी जाओ, देर न करो। इस पर तीलम फौरन मुड़ा। शहजादी अपनी हंसी छुपाते हुए बोली, कब तक वापस आ जाओगी? तीलम ने दरवाजे से बाहर निकलते हुए कहा, बहुत जल्द, हवा से भी ज्यादा तेज वापस आऊंगी। इतना कहने के बाद तीलम उमरू के मकान से बाहर निकल गया। बिल्किस जान चुकी थी कि अब वो लौटकर कभी इस घर में नहीं आएगा। वजीर आजम अलश्तर के हुक्म पर तमाम सिपाहियों ने शहरियों को छोड़कर सहराई डाकों की तलाश में दूर दूर तक घूमना शुरू कर दिया। मसरूक और उसके साथियों को जब पता चला कि सिपाहियों ने शहरियों से तवज्जो हटाई है तो वो अपने आप में बहुत खुश हुए, क्योंकि हकीकत में वही अहमद और जुबैर के कातिल थे। मसरूक और उसके साथियों ने ही रात के अंधेरे में अहमद और जुबैर को कत्ल करने के अलावा उनका सासा भी लूट लिया। मसरूक नहीं जानता था कि सिपाही क्यों कर शहर से निकले हैं। अलबत्ता अज्जाल खूब अच्छी तरह से जानता था कि जिल्ला ने साजिश करके सिपाहियों को शहरियों की तलाशी वगैरह से हटवाया है। उसकी साजिश कामयाब रही है। अज्जाल ने असल बात से मसरूक को आगाह न किया, बल्कि सिपाहियों के हटते ही वो मुबारकबाद देने की गर्ज से मसरूक के यहाँ जा पहुंचा। मसरूक ने उसकी मुबारकबाद कबूल करते हुए कहा, जैद, हमने अगर अपने दुश्मनों से इंतकाम लिया है तो तुम्हारी हिम्मत दिलाने पर। तुम्हारी दौलत ने हमें हौसला पैदा किया है। अब आइंदा भी हम तुम्हारे ही मशवरों पर अमल करेंगे। अज्जाल ने मासूमियत के साथ जवाब दिया, मसरूक, मैं तो नौ मुस्लिम हूँ और दूसरों को छोड़कर तुम्हारा पैरोकार बन गया हूँ। अब तो मेरी पूरी जिंदगी ही तुम्हारे कदमों में गुजरेगी। अज्जाल की इस बात पर मसरूक अपने आप में बहुत खुश हुआ। उसने अपने साथियों से मुखातिब होते हुए कहा, देखा तुमने जैद की फर्मा बरदारी और जानिसारी। इसने हमें अपनी दौलत भी दी है और अपनी खिदमत भी। फिर उसने अज्जाल से मुखातिब होते हुए कहा, जैद, तुमने जो कुछ हमारे लिए किया है या कर रहे हो, हम उसके लिए तुम्हारे बेहद मशकूर हैं। ये तुमने बहुत अच्छा किया जो दूसरे मुसलमानों को छोड़कर हमारे साथ मिले। मसरूक, अज्जाल ने मसरूक के दूसरे साथियों की जानिब देखते हुए कहा, मैं आपसे बहुत ही जरूरी बातें करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपसे चंद बातें तन्हाई में हो जाएं तो ज्यादा बेहतर है। अज्जाल की इस बात पर मसरूक ने अपने तमाम साथियों को कमरे से बाहर चले जाने को कहा, जिस पर वह उसी वक्त बाहर चले गए। अज्जाल ने जब देखा कि अब उसके और मसरूक के सिवा और कोई नहीं रहा तो उसने मसरूक से राजदाराना अंदाज में कहा, मसरूक, मैं चाहता हूँ कि आपको फिर से यमन की हुक्मरानी मिल जाए। वो कैसे? मसरूक ने अपनी जगह से तकरीबन उछलते हुए पूछा। इसके लिए आपको बड़ी राजदारी से एक काम को सरंजाम देना होगा। वो क्या? मसरूक का तजस्सुस बढ़ा। अज्जाल ने आहिस्ता से कहा, आप अपने साथियों के जरिया से बड़े बड़े आदमियों को मरवा डालें।
میرا کہنے کا مطلب ہے جتنے بھی شاہ یمن کے حمایتی ہیں آپ ان کو قتل کروا دیں۔ اجال کی اس بات پر مسروق کچھ پریشان سا ہو کر بولا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ بہت آسانی کے ساتھ، ذرا ہمت اور ہوشیاری سے کام لینا ہوگا۔ شاہ یمن کے بڑے آدمیوں کو قتل کرنے سے پہلے آپ کو عام مسلمانوں کے ساتھ میل ملاپ رکھنا ہوگا۔ انہیں بتانا ہوگا کہ آپ کے عقائد ایسے نہیں ہیں کہ جو عام مسلمانوں سے مختلف ہیں۔ آپ ان کی ہمدردی حاصل کریں۔ مجھے یقین ہے وہ لوگ جلد ہی آپ کے خیر خواہ ہو جائیں گے۔ صرف آپ کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ آپ مسلمانوں میں آپ کا وقار بڑھ گیا ہے اور ہر کوئی آپ کی خیر خواہی چاہنے لگا ہے، تو اس کے بعد آپ اپنی کارروائی شروع کر دیں۔ مجھے یقین ہے کوئی بھی شخص آپ پر اور آپ کے حواریوں پر شبہ نہیں کرے گا۔ جب شاہ یمن کے حمایتی بڑے لوگ راستے سے ہٹ جائیں گے تو آپ کے لیے خود بخود راستہ بن جائے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو یمن کا تخت دلا کر ہی دم لوں گا۔ جب آپ یمن کے تخت پر قابض ہو جائیں تو پھر جی بھر کر عربوں کو قتل کروا دیں، مگر اس میں تو بہت عرصہ لگے گا۔ مسروق نے کسی حد تک اجال کی باتوں سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ اجال بولا، صرف چند دنوں کی بات کریں، آپ کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ جو ہی آپ نے عام مسلمانوں کی جانب قدم بڑھایا، میں فوراً آگے بڑھ کر اپنی چرب زبانی سے لوگوں کو یقین دلانے میں کامیاب ہو جاؤں گا کہ آپ وہ نہیں ہیں جو عام مسلمان سمجھتی ہیں۔ آپ بے حد متقی اور پرہیزگار مسلمان ہیں۔ آپ کے عقائد بھی اسلام کی بنیادی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں۔ اس پر مسروق بہت خوش ہوا۔ اسے اجال کی بات پر پورا اعتماد تھا۔ اسے علم تھا کہ اجال جو کچھ کہتا ہے اسے کر بھی دکھاتا ہے۔ اس کے بعد اس نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ اجال سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، میں تمہاری ہر بات پر عمل کروں گا، بس تم کسی طرح سے مجھے یمن کی بادشاہت دلا دو، پھر تم دیکھنا میں عربوں سے اپنے بزرگوں کے قتل عام کا کیسا بدلہ لیتا ہوں۔ میں چن چن کر انہیں قتل کروں گا۔ میری بادشاہت میں تم میرے وزیر ہوگے اور میں تمہارے ان احسانات کا بدلہ اچھے طریقے سے اتاروں گا۔ میری بات نہ کریں، میں اس وقت بھی آپ کا معمولی خادم ہوں اور آپ کے بادشاہ بن جانے کے بعد بھی آپ کا معمولی خادم ہی رہوں گا۔ آپ اتنی بات کا خیال ہمیشہ رکھیں کہ جو کوئی آپ کے قریب آ جائے اسے آپ اپنے ہی عقائد میں رنگ دیں، عام مسلمانوں کے دین پر اسے رہنے نہ دیں، اور جب آپ بادشاہ بن جائیں تو اسی کو یمن میں رہنے کی اجازت دیں جو آپ کے دین میں شامل ہونے کا اعلان کرے۔ بالکل ٹھیک ہے زید، میں تمہاری اس بات پر پورا عمل کروں گا۔ یہ بھی تم نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ بادشاہ بننے کے بعد میں تمام عربوں کو نماز اور روزے سے بے نیاز کر دوں گا۔ اس بات پر سختی سے عمل ہوگا کہ کوئی شخص نماز کے لیے کسی مسجد میں داخل نہ ہو اور نہ ہی کوئی روزوں کی پابندی کرے۔ اگر کسی نے ایسا کرنا ہے تو وہ اپنے گھر کی چار دیواری میں کرے، باہر ان دونوں میں سے کسی بات پر عمل نہ کرے۔ اجال مسروق کی یہ بات سن کر پہلے تو چپ رہا، پھر اس نے مسکرا کر کہا، آپ گھر میں عبادت کرنے کی اجازت محض اس وقت تک دیں جب تک آپ کی حکومت یمن پر مضبوط نہیں ہو جاتی۔ جب حکومت مضبوط ہو جائے تو پھر آپ گھر میں بھی عبادت کرنے والوں کو کڑی سے کڑی سزا دینے کا اعلان کر دیں اور لوگوں کے گھر مسمار کروا دیں جو گھروں میں روزے اور نمازوں کی پابندی کریں۔ مسروق اس بات پر ایسے خوش ہوا جیسے اسے ابھی سے یمن کی حکومت مل گئی ہو۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے تالی بجاتے ہوئے کہا، بہت خوب، یہ بھی تمہارا مشورہ بہت اچھا ہے، ہم اس پر بھی عمل کریں گے۔ اس کے بعد اجال نے جب دیکھا کہ اب مسروق اس کے جال میں پورا پھنس گیا ہے اور آئندہ وہ اس کے مشوروں کے بغیر کوئی کام نہیں کرے گا، تو وہ اس کے پاس سے اٹھ کر الیاب کے ہاں جانے کے لیے چل پڑا۔ جب اجال الیاب کے گھر میں داخل ہوا تو اس نے عبداللہ کو الیاب کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اجال نے الیاب کی جانب دیکھا۔ الیاب نے نظروں ہی نظروں میں اسے سمجھا دیا کہ کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ نے بھی اجال کی جانب دیکھا، پھر اس نے الیاب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میرے خیال میں یہ نو مسلم زید تو نہیں؟ آپ نے ٹھیک پہچانا ہے، یہ زید ہی ہیں، بڑا اچھا انسان ہے، کبھی کبھار ملنے کی غرض سے میرے پاس چلا آتا ہے۔ عبداللہ نے پوچھا، یہ کوئی کام بھی کرتا ہے یا نہیں؟ عبداللہ کی اس بات پر الیاب نے اجال کی جانب دیکھا۔ اجال جھٹ سے بولا، جی ہاں، میں نے مشکیزوں کا کاروبار شروع کر رکھا ہے۔ بہت خوب، بڑا نیک کام ہے، برخوردار کوئی اچھا مشکیزہ ہمیں بھی دلا دینا، شاید کسی وقت سفر پر جانا پڑ جائے، تم جو کہو گے میں اس کی قیمت ادا کر دوں گا۔ اجی آپ قیمت کی بات نہ کریں، اگر قیمت دینی ہے تو پھر آپ کسی اور کو دے کر اس سے مشکیزہ خرید لیں۔ الیاب بولا، چھوڑیے عبداللہ صاحب، قیمت کی بات نہ کریں، یہ بہت ہی نیک اور خدمتگار قسم کا انسان ہے، یہ تو آپ جیسے نیک لوگوں کی خدمت کر کے بہت ہی خوش ہوتا ہے، اللہ اسے سلامت رکھے۔ یہ اسلام ہی کی برکات کا نتیجہ ہے کہ جو کوئی اسلام میں شامل ہوتا ہے وہ تہہ دل سے نیک ہو جاتا ہے۔ عبداللہ کی اس بات پر اجال اور الیاب نے شریر نظروں سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، مگر عبداللہ ان کی شرارت کو نہ سمجھا۔ پھر الیاب نے عبداللہ سے کہا، آپ دونوں مقتول بھائیوں کی بات کر رہے تھے؟ ہاں، زیاد کے آنے پر میری بات ادھوری رہ گئی،
मैं आपको बताने आया था कि उन भाइयों के कत्ल हो जाने पर पूरे शहर में चहमगोइयां हो रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन दोनों को हबशियों के उस गिरोह ने मारा है जो मुसलमान कहलाने के बावजूद नमाज और रोजे के पाबंद नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें सहराई डाकू ने कत्ल किया है। ये कत्ल किसी ने भी किए हों, आपके लिए रास्ता साफ हो गया है। अलियाब ने चौंक कर अब्दुल्ला की जानिब देखा। उसे अब्दुल्ला के इंकशाफ ने परेशान कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब्दुल्ला ने उसे हकीकत जानने की खातिर ये जुमला अदा किया हो। मगर अलियाब के बात करने से पहले ही अज्जाल ने पूछ लिया, कासिम भाई के लिए किस बात का रास्ता साफ हो गया है? तुम नहीं जानते जैद, कासिम मेरी बात को समझ गया है। अब्दुल्ला ने अज्जाल को जवाब देने के बजाय अलियाब की जानिब देखा। अलियाब भांप गया, अब्दुल्ला की बात में जरूर कोई राज है। इस पर उसने अफसरदा सा चेहरा बनाते हुए कहा, अब मैं जमीन नहीं लूंगा। वो क्यों? आप तो उनकी जमीन के लिए सख्त बेचैन थे। अलियाब के लिए अब्दुल्ला की ये बात भी सख्त परेशान कुन थी, लेकिन उसने अपने आप पर काबू पाते हुए जवाब दिया, अब्दुल्ला साहब, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं उनकी जमीन अपने लिए थोड़ी ही हासिल कर रहा था, अपने गरीब भाइयों के लिए हासिल कर रहा था। मगर अब उनकी मौत के बारे में जानकर मेरा तो दिल ही बुझ गया है। अब मैं कभी वो जमीन नहीं खरीदूंगा। इस बात का इजहार तो मैं पहले भी आपके सामने कर चुका हूँ। अज्जाल ने अब्दुल्ला से मुखातिब होते हुए कहा, अगर कोई अच्छी जमीन बिक रही है तो आप मुझे दिला दें, मैं वहां मशकीज़ें बनवाने का कारखाना खोल लूंगा। अलियाब अज्जाल की इस बात पर बड़ा मुतमईन हुआ। उसने भी अब्दुल्ला पर जोर देते हुए कहा, हाँ, आप जैद को वो जमीन दिला दें, ये वहां अपना कारोबार करेगा। इस पर अब्दुल्ला ने जवाब दिया, मैं कल ही काजी साहब से मिलकर बात करूंगा। मुझे उम्मीद है वो मेरी सिफारिश पर जैद को अहमद का मकान और जमीन दे देंगे। हाँ, आप कोशिश कर देखें, अगर बात बन जाए तो अच्छा है। अलियाब ने अब्दुल्ला से मुखातिब होते हुए कहा, अगर बात ना बने तो आप मजबूर भी ना करें। अब्दुल्ला ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, अजी बात क्यों नहीं बनेगी? आज तक काजी साहब ने मेरी किसी बात को रद्द नहीं किया। इंशाअल्लाह जैद को जमीन मिलकर रहेगी। इतना कहने के बाद अब्दुल्ला ने अज्जाल और अलियाब से हाथ मिलाया और चला गया। उसके जाने के बाद अलियाब ने उठकर दरवाजे से बाहर झांका, फिर दरवाजा बंद किया और अज्जाल से मुखातिब होते हुए बोला, अब्दुल्ला की बातों से मुझे ऐसा मालूम होता है कि जैसे उसे मेरी जात पर कोई शुबा है। वो समझदार और दूर अंदेश इंसान है और फिर काजी के पास बैठने वाला शख्स है। मेरे ख्याल में उसे शुबा है कि अहमद और जुबैर को मेरे इशारे पर कत्ल किया गया है। चूंकि आपने उनकी जमीन खरीदने पर जिद की थी, इसलिए उसे आपकी जात पर शुबा है। अब आप किसी कीमत पर भी जमीन ना खरीदें। मैंने बात की है तो मैं ही खरीदूंगा। जमीन मेरे खरीदने से भी आपका मसला हल हो जाएगा। हाँ अज्जाल, अब तुम ही उस जमीन को खरीदना। जमीन तुम्हारे खरीदने से भी वही कुछ होगा जो हम चाहते हैं। इसके बाद अज्जाल ने अपनी और मसरूक की मुलाकात और बातों से एक दूसरे को आगाह किया। अलियाब ने सारी बात सुनने के बाद अज्जाल को मशवरा देते हुए कहा, फिर भी तुम उससे होशियार रहना और दूर रहने की भी कोशिश करना। मुझे यकीन है कि वो अपने इरादों में कामयाब नहीं होगा। अगर वो अपने इरादों में कामयाब ना हुआ तो तमाम राज फाश होने का भी खतरा है। तुम इस बात की कोई फिक्र न करो। मसरूक से पहले जिल्ला अपने इरादों में कामयाब होगी। उसने पहले ही वार में हम पर आने वाली मुसीबत खत्म करके अपनी जहानत का सबूत दे दिया है। अब वो अलश्तर को कामयाब करवाने की कोशिश करेगी। क्या मैं मसरूक के लिए काम ना करूं? अज्जाल के पूछने पर अलियाब ने कुछ सोचा, फिर उसने उसे जवाब देते हुए कहा, तुम किसी तरह से उसके हाथों अब्दुल्ला को कत्ल करवा दो। मुझे अब्दुल्ला पर शुबह है कि वो हमारे कामों की निगरानी कर रहा है। वो एक मुखलिस और सच्चा मुसलमान है, इसलिए वो जो काम भी करेगा मुसलमानों की भलाई के लिए करेगा। उसका हमारे रास्ते से हटना बहुत जरूरी है। वैसे भी वो मशकूक नजरों के साथ मुझे देखता है। बातों के दौरान मैंने इस बात का बखूबी अंदाजा किया है। अलियाब की इस बात पर अज्जाल कुछ परेशान हो गया। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोला, अगर अब्दुल्ला के कत्ल से मसरूक पकड़ा गया तो सारा भांडा फूट जाएगा। तुम इस बात की फिक्र न करो। मैं जिल्ला को अपने यहाँ बुलवाकर सारी बात समझा दूंगा। अलबत्ता उसे बुलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद ही आज मुझे मिलने की घर से आएगी। मैं नई साजिश उसके पल्ले डालकर यहाँ से रवाना करूंगा। तुम मसरूक को भड़का कर अब्दुल्ला को कत्ल करवाने की बात करो। इसके साथ ही मसरूक और उसके साथियों को कुछ दे दिलाकर यहाँ से रवाना कर दो। वो कुछ अरसा तक सना से चले जाएंगे तो बात खुद ब खुद ही दब जाएगी और फिर जिल्ला की साजिश से वो लोग वापस भी आ जाएंगे तो कोई उन पर शुबा नहीं करेगा। अज्जाल अलियाब की बातों से परेशान होकर रह गया। उसने जो पट्टी मसरूक को पढ़ाई थी, अलियाब ने अपनी बात करके उस पर पानी फेर दिया। अगर अब उसने मसरूक को अब्दुल्ला के कत्ल करने के लिए कहा तो मुमकिन हो सकता है वो बिगड़ जाए या इस बात को वो अपने लिए खतरनाक ही समझे। अज्जाल की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो अलियाब को क्या जवाब दे क्या नहीं। फिर अलियाब ने उसे खामोश पाकर कहा, अज्जाल तुम्हें वही कुछ करना होगा जो मैं कहूँगा।
یہ ٹھیک ہے کہ تم مسروق کو دوسرے راستے پر لگا کر مسلمانوں کے درمیان نفاق پیدا کرنا چاہتی ہو اور بڑے سے بڑے مسلمانوں کو قتل کروانا چاہتی ہو، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کام سے پہلے عبداللہ کا قتل ضروری ہے۔ اگر اسے قتل نہ کیا گیا تو وہ بھوکے کتے کی طرح ہمارے پیچھے لگا رہے گا اور پھر باتوں ہی باتوں میں ہمیں پھنسا بھی دے گا۔ جب ذلہ کامیاب ہو جائے گی تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ مسروق اور اس کے ساتھیوں کو واپس بلا لیا جائے گا۔ اس کے بعد تم اسے سبز باغ دکھا کر یمن کی بادشاہت دلانے کی بات دوبارہ کر لینا، پھر میں بھی اس معاملے میں تمہارا ساتھ دوں گا، مگر اس کے بعد کیا ہوگا یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ اجال نے بڑے غور سے الیاب کی باتیں سنی۔ جب وہ اپنی بات مکمل کر چکا تو اجال نے اس بات میں اپنا سر ہلایا۔ اس کے بعد الیاب سے ہاتھ ملانے کے بعد وہ اس کے گھر سے باہر نکل آیا۔ ذلہ دن کے پچھلے پہر الیاب کے ہاں پہنچی۔ الیاب اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ وہ اس سے بولا، تم عظیم اسرائیلیوں کے لیے کام کر رہی ہو، اپنے خداوند خدا کی حکومت مستحکم بنانے کی خاطر تم قربانی دے رہی ہو، تمہارا نام اور کام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ذلہ مسکراتے ہوئے بولی، شکریہ، امی الربی نے سچ ہی کہا تھا کہ خوبصورت عورت مسلمان کی کمزوری ہے۔ مت بھولو، ہر مسلمان کی کمزوری عورت نہیں ہے، صرف انہی لوگوں کی کمزوری ہے جو اپنے ایمان میں کمزور ہیں۔ الاشتر ایک عیاش قسم کا انسان ہے، اس لیے تمہاری خوبصورتی کے جال میں اس کا پھنس جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ خیر، ایسی باتیں تو بعد میں بھی ہوتی رہیں گی، میری آج کی بات غور سے سنو۔ میں نے اجال کو عبداللہ کے قتل پر اکسایا ہے، وہ مسروق سے اس کا قتل کروائے گا، اس کے بعد مسروق اور اس کے ساتھی صنعاء سے فرار ہو جائیں گے۔ اس پر عام لوگوں کو مسروق اور اس کے ساتھیوں پر ہی شبہ ہوگا کہ انہیں عبداللہ نے قتل کروایا ہے، مگر تم نے اپنی چالاکی اور ہوشیاری سے الاشتر کو یقین دلانا ہے کہ یہ قتل مسروق اور اس کے ساتھیوں نے نہیں کیا بلکہ کسی اور کی شرارت ہے۔ کسی اور کی شرارت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ ذلہ کے پوچھنے پر الیاب مسکراتے ہوئے بولا، عبداللہ کا بھانجا خالد بن کلاب اس سے دشمنی رکھتا ہے، بس تم نے قتل کے سلسلہ میں اسی کا نام لینا ہے اور اسی کو گرفتار بھی کروانا ہے۔ اس بات کا میں پتہ چلا چکا ہوں کہ خالد بن کلاب کی عبداللہ سے دشمنی ہے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر مسروق اور اس کے ساتھیوں کو صنعاء سے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے ہوتے ہی خالد کو گرفتار کروایا جا سکتا ہے۔ تم نہیں سمجھتی کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ اگر وہ لوگ یہیں رہے تو تم کامیاب نہیں ہو سکتی، نہ تم شاہ یمن کو مروا سکتی ہو اور نہ ہی تم الاشتر کو یمن کی حکومت دلا سکتی ہو۔ اس کے علاوہ ہم آسانی سے قارون کا خزانہ بھی نہیں نکال سکتے۔ ذلہ کی سمجھ میں الیاب کی باتیں نہ آئیں۔ الیاب نے جب اسے حیران نظروں سے دیکھتے ہوئے پایا تو وہ بولا، اجال نے مسروق کو یمن کے تخت کا جھانسا دیا ہے، اگر وہ عبداللہ کے قتل کے بعد صنعاء میں رہتا ہے تو اپنی سازش میں کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ اجال اس کا ساتھ دینے پر مجبور ہو جائے گا۔ اگر وہ یہاں سے چلا جاتا ہے تو اس کی غیر حاضری میں الاشتر کامیاب ہو جائے گا، اور جب مسروق اور اس کے ساتھی تمہاری سازش سے واپس لوٹیں گے تو تم الاشتر کو کہہ کر ان سب کو قتل کروا دینا۔ اس طرح سے تمام راز ہی میں رہ جائیں گے، کوئی بھی نہ جان سکے گا احمد، زبیر اور عبداللہ کو قتل کروانے میں کن کا ہاتھ ہے۔ میں آپ کی ساری بات سمجھ گئی ہوں۔ اس پر الیاب نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، پھر تم الاشتر کے ساتھ محل میں جانا اور وہاں ایک آدھ دن رہنے کی ضد کرنا۔ جب تم دوسرے دن۔ اس کے بعد الیاب نے اسے کان میں کچھ سمجھایا جسے جان کر ذلہ کے ہونٹوں پر مکروہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر اس نے الیاب سے پوچھا، کیا مجھے محل میں الاشتر کی بیوی بن کر جانا ہوگا؟ بالکل، یہ کھیل تمہیں کھیلنا ہی پڑے گا۔ جب یہ باتیں ہو چکی تو ذلہ نے قارون کے خزانے کا ذکر چھیڑتے ہوئے کہا، میرے خیال میں امی الربی کی یہ بات درست نہیں لگتی کہ خزانہ اسی علاقہ میں غرق ہوا تھا۔ میں نے ایک دو مسلمانوں سے بات کی ہے، وہ خزانے کی غرقابی کا مقام تیہ بتاتے ہیں جو مصر سے کچھ فاصلے پر ہے۔ ہاں، کچھ روایات ایسی بھی ہیں، مگر ہم کیا کریں، ہمیں تو امی الربی نے جن جگہوں کی نشاندہی کی ہے وہیں خزانے کو تلاش کرنا ہے۔ اگر وہاں سے خزانہ نہ ملا تو ہمیں کیا؟ اس بارے میں ربی ابی یاتر ہی اس سے بات کر سکتی ہیں۔ کیا امیل نے ابی یاتر سے مشورہ کرنے کے بعد قدم نہیں اٹھایا تھا؟ ذلہ کے پوچھنے پر الیاب نے کھڑکی سے باہر خلاؤں میں گھورتے ہوئے کہا، یہ میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ اس نے خزانے کے بارے میں ربی یاتر سے مشورہ کیا ہے یا نہیں۔ ذلہ خزانہ ملے یا نہ ملے، مگر یمن میں رہ کر ہم ایک کام کرنے میں تو کامیاب ہو ہی جائیں گے، وہ یہ کہ مسلمانوں کی حکومت کی تباہی اور بربادی، شاہ یمن کا قتل، اس کے علاوہ تمام مسلمان علماء کا قتل۔ اگر ہم اس بات میں بھی کامیاب ہو گئے تو یہ ہمارے لیے خزانہ پانے سے بھی زیادہ خوشی کی بات ہوگی، اور شاید اسی افراتفری میں ہم یمن کی حکومت بھی سنبھالنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ذلہ نے اس بات سے الیاب سے اتفاق کیا۔ اس کے بعد ذلہ کچھ دیر تک اور بیٹھی رہی، پھر الیاب کی دعاؤں کے ساتھ اٹھ کر الاشتر کے محل میں جا پہنچی۔
तीलम उम्र यार के घर से निकलकर सुहादा के यहाँ पहुंचा और उसे बालों की लट दिखाते हुए बोला, ये देख लो, मैं सरदारनी के बालों की लट लाने में कामयाब हो गया हूँ। जिंदाबाद, सुहादा बोला। अब हम दोनों सरदार के पास जाकर कहेंगे कि हमने ये लट बड़ी मुश्किल से हासिल की है। देख तीलम, सरदार के पास जाकर ये ना कहना कि तुम अकेले ने ये बाल हासिल किए थे। मेरा नाम भी जरूर लेना, क्योंकि मैं तुम्हारी गैर हाजिरी में उम्र के इरादों का पता चलाता रहा हूँ। इसलिए सरदार के नाम का आधा हकदार मैं भी हूँ। क्यों नहीं सुहादा, भला मैं तुम्हें किसी बात में पीछे रख सकता हूँ? जितना इनाम मैं हासिल करूंगा उतना ही तुम भी हासिल कर लेना। सुहादा बोला, अब देर ना करो, सरदार के पास चलने वाली बात करो। मगर इस घर का क्या बनेगा जिसमें तुम रह रहे थे? इसका क्या बनेगा? जाते हुए इसे आग लगा देंगे। लोग यही समझेंगे कि घर के साथ घर में रहने वाले भी जल मरे हैं, और क्या। बिल्कुल ठीक है, चलो यहाँ से उड़ने वाली बात करो। इस पर सुहादा और तीलम दोनों ने मंत्र पढ़े। मंत्र पढ़ने के साथ ही एक तो घर को आग लग गई, दूसरे वो दोनों वहां से गायब होकर सरदार खिलान के महल में जा पहुंचे। महल में पहुंचने के बाद वो बड़े क्रॉफर के साथ खिलान के सामने हाजिर हुए। खिलान को सलाम करने के बाद वो दब से खड़े हो गए। खिलान जिन बोला, अच्छा तो तुम आ गए, अपने काम में कामयाब भी हुए या नहीं? अजी मैं कामयाब। तीलम की बात सुहादा ने पूरी ना होने दी। उसने उसके पांव पर अपना पांव मारते हुए कहा, हुजूर हम दोनों कामयाब हुए हैं। हमने? अब की बार तीलम ने सुहादा के पांव पर पांव मारते हुए कहा, अजी हजूर मैंने बड़ी चालाकी और होशियारी से। सुहादा ने अब की बार उसकी पसली में हाथ मारते हुए कहा, हजूर आप मुझसे पूरी बात सुने, आपसे मैं जो कुछ कहूंगा सच ही कहूंगा। तीलम को बात करना नहीं आता। तुम दोनों बहस छोड़ो, मुझे बाल दो, बाल लेने के बाद मैं तुम दोनों की बात सुनूंगा। इस पर तीलम फौरन आगे बढ़ा और कपड़े में लिपटे हुए बाल खिलान को देते हुए बोला, हजूर सरदारनी के बालों की खातिर मैंने बड़े दुख उठाए हैं, और मैंने भी। सुहादा ने अपनी जगह खड़े खड़े कहा। खिलान ने उन दोनों को कोई जवाब ना दिया। कपड़ों से बाल निकालकर देखे तो उसकी घनी और गहरी स्याह भवें तन गईं। उसने गुस्सीली नजरों से दोनों की जानिब देखते हुए कहा, अच्छा तो तुम दोनों ने ये बाल हासिल करने में बड़े दुख उठाए हैं। सुहादा सरदार की बात पर फौरन ताड़ गया कि जरूर दाल में कुछ काला है, इसलिए फौरन बात बनाते हुए बोला, हजूर मैंने नहीं, तीलम ने दुख उठाए हैं। तीलम भी सरदार के गुस्से को ताड़ गया कि जरूर कोई गड़बड़ है। वो फौरन बोला, हजूर हम दोनों ने दुख उठाए हैं। बकवास बंद करो, खिलान चिल्लाया। जाहिलो, ये मेरी बीवी के बाल नहीं हैं, बल्कि किसी घोड़ी के बाल हैं। आखिर वो यार तुम दोनों को धोखा देने में कामयाब हो ही गया। हजूर ये तीलम ही उमरू के घर से लाया था। नहीं हजूर, मैं तो सुहादा के मशवरों पर ही अमल करता था। गधे, जाहिल, बेवकूफ, कामचोर, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। अब मैं खुद ही उमरू से दो दो हाथ करूंगा। सरदार की इतनी बात सुनते ही दोनों उसी वक्त खिलान की नजरों के सामने से गायब हो गई। अब्दुल्ला जैसे नेक और दूरअंदेश इंसान का कत्ल कोई मामूली कत्ल नहीं है। हजूर मैं यकीन से कहता हूँ कि यह कत्ल मसरूक और उसके साथियों ने किया है। काजी ने शाह यमन से कहा, बल्कि पहले दो कत्ल भी उन्होंने ही किए थे। सिपा सालार मुआज ने भी उन्हीं पर अपना शक जाहिर किया। वजीर आजम अल अश्तर ने दोनों की बात सुनकर जवाब दिया, मगर मसरूक और उसके साथी तो कई दिनों से सना से गायब हैं। आपको किसने बताया कि वो कई दिनों से गायब हैं? काजी जिंदल ने अल अश्तर से पूछा। अल अश्तर ने जवाब दिया, मुझे मेरी सिपाहियों ने बताया है। जब अब्दुल्ला का कत्ल हुआ तो मैंने भी अपना शुबा मसरूक और उसके साथियों पर ही जाहिर किया, जिस पर मैंने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो मसरूक और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लें। इस पर जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि मसरूक और उसके साथी कई दिनों से कहीं गए हुए हैं। इस पर मुझे यकीन करना पड़ा कि अब्दुल्ला का कत्ल मसरूक ने नहीं किसी और ने किया है। काजी ने शाह यमन से मुखातिब होते हुए कहा, मुझे तो उन 9 मुस्लिमों पर भी शक है जो अहमद और जुबैर की जायदाद खरीदना चाहते थे। अब्दुल्ला ने सबसे पहले दोनों भाइयों के कत्ल का शुबा कासिम पर किया था। काजी जिंदल की इस बात पर अल अश्तर ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। फिर उसने दोनों के हक में वकालत करते हुए कहा, बिल्कुल गलत और बेबुनियाद बात है। आप असल मामले को उलझाने की कोशिश कर रही हैं। मैं जाती तौर पर दोनों 9 मुस्लिमों को जानता हूँ। वो बहुत ही नेक और बाखिलाक हैं, हर गरीब मुसलमान का ख्याल रखती हैं, ज़कात देती हैं और बाकायदगी से मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ती हैं। आज तक कासिम ने जितने भी मकानात और अराजी खरीदी हैं वो उसे गरीब मुसलमानों को देने के बारे में सोच रहा है, अच्छे मकानात बनवा रहा है। इन सब बातों को सोचते और देखते हुए मैं कैसे कह दूं कि वो मुजरिम किस्म के लोग हैं। फिर अब्दुल्ला के अच्छे दोस्तों में शुमार होता था। मुझे इन सब बातों का इल्म है, इसलिए मैं किसी कीमत पर भी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं कि मकतूलों के कत्ल में उन दोनों 9 मुस्लिमों का हाथ है। अल अश्तर ने पूरे जोश के साथ बात की। काजी जिंदल और सिपा सालार पर तो उसकी बातों का कोई असर न हुआ, अलबत्ता शाह यमन उसकी बातों से जरूर मुतासिर हुआ।
اس نے جندل اور معاذ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، مجھے الاشتر کی باتوں سے اتفاق ہے، عبداللہ کو ضرور کسی ایسے آدمی نے قتل کیا ہے جو اس سے دشمنی رکھتا تھا۔ پھر شاہ یمن نے الاشتر سے پوچھا، الاشتر تمہارے خیال میں عبداللہ کو کس نے قتل کیا ہے؟ حضور میں پورے وثوق سے فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر مجھے ایک آدمی پر شک ہے، اور میرا شک کسی حد تک درست بھی ہے۔ کس پر تمہارا شک ہے؟ شاہ یمن کے پوچھنے پر الاشتر نے جواب میں کہا، میرا شک عبداللہ کے بھانجے خالد بن کلاب پر ہے، اس کے اپنے ماموں سے ہمیشہ دشمنی رہی ہے۔ دشمنی کی کوئی وجہ؟ قاضی جندل نے پوچھا۔ الاشتر نے پہلے سپہ سالار معاذ کی جانب دیکھا، پھر شاہ یمن سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میرے خیال میں کوئی خاندانی ناچاکی ہے۔ معاذ نے اپنے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے کہا، ہاں مجھے بھی اس بات کا علم ہے، خالد بن کلاب کی اپنے ماموں سے دشمنی ہے۔ دراصل خالد کے باپ کا تعلق قبیلہ بنی اسد سے ہے اور عبداللہ کا تعلق قبیلہ طے سے ہے۔ ان دونوں قبیلوں کے درمیان ہمیشہ دشمنی رہی ہے۔ کلاب چونکہ مر چکا ہے اس لیے اس کا بیٹا خالد اپنے ماموں سے دشمنی رکھتا ہے، اس بات کا مجھے علم ہے۔ شاہ یمن بولا، پھر تو بات واضح ہے، خالد کو فوراً گرفتار کر لینا چاہیے۔ الاشتر تم اسے گرفتار کروا کر قاضی جندل کے روبرو پیش کر دو۔ ٹھیک ہے حضور والا، میں ابھی یہاں سے جا کر آپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد الاشتر اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ شاہ یمن نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ الاشتر چلتے چلتے رک گیا اور شاہ یمن سے بولا، حضور میری بیوی حرم میں گئی ہوئی ہے، کسی خادم کو حکم دے کر اسے بلوا دیں۔ تم بھی خادم کو حکم دے سکتے ہو، بھلا اس میں ہماری اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ اس پر الاشتر نے ایک لونڈی سے کہا کہ وہ اندر حرم سرا میں جا کر اس کی بیوی صفورہ یعنی ذلہ کو بلوا لائے۔ لونڈی گئی اور چند لمحوں میں ہی انہی پیروں واپس آ کر بولی، حضور انہوں نے کہا ہے کہ وہ آج رات محل میں ہی رہیں گی۔ شاہ یمن کی ملکہ نے انہیں اپنے ہاں رکنے کے لیے کہا ہے۔ الاشتر نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے بعد شاہ یمن سے مخاطب ہو کر بولا، حضور مجھے اجازت دیجیے، بیگم آج رات کے لیے آپ ہی کی مہمان ہے، کوئی بات نہیں، اسے بھی ہمارے محل میں رہنے کا حق حاصل ہے۔ اس پر الاشتر نے شاہ یمن کو سلام کیا اور محل سے باہر نکل گیا۔ الاشتر کے چلے جانے کے بعد قاضی جندل اور معاذ بھی شاہ یمن کی اجازت لے کر محل سے باہر چلے آئے۔ محل سے باہر آ کر قاضی جندل نے معاذ سے کہا، معاذ میں اب بھی تمہاری بات سے مطمئن نہیں اور نہ ہی الاشتر کی بات سے مطمئن ہوں۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ عبداللہ کے قتل میں کسی کی گہری سازش ہے۔ نہیں، آپ کا خیال غلط ہے، خالد بن کلاب ہی عبداللہ کا قاتل ہے۔ قاضی جندل بولا، میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی بات نہیں، خالد گرفتار ہونے کے بعد آپ ہی کے سامنے حاضر ہوگا، آپ خود اس سے پوچھ لیں کہ اس نے اپنے ماموں کو قتل کیا ہے یا نہیں۔ اس پر قاضی جندل نے اس بات میں سر تو ہلا دیا مگر معاذ کو جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد دونوں اپنے اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ دونوں اس حقیقت سے بیگانہ اور بے خبر تھے کہ الاشتر کے ذہن و دل پر ذلہ سوار ہے اور جو کچھ وہ الاشتر کو پٹی پڑھاتی ہے الاشتر اسی پر عمل کرتا ہے۔ آج بھی وہ الاشتر کو ساری بات ذہن نشین کروانے کے بعد اسی کے ہمراہ شاہ یمن کے محل میں آئی تھی۔ وہ بھی ایک سازش اور بات ہی کی خاطر محل میں داخل ہوئی تھی اور الاشتر سے ضد کر کے محل میں اس کے ہمراہ پہنچی۔